फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मा एमसीक्यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। देखिए, जो तमिलनाडु में एमआरबी फार्मासिस्ट के लिए वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज। ओके, दिस सीरीज इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर तमिलनाडु एमआरबी फार्मासिस्ट एग्जाम. Okay, follow it and share with your friends, and for PDF of this material and the recorded video courses you can download Pharma MCQ mobile applications. Link is given in the description box. Okay, let's start the video. We have discussed question number 60 up to question number 60 we have discussed. Okay, देखिए अभी next question number 61 से हम लोग देखते हैं. क्वेश्चन देखिए, फेनिटोइन इज अ डैश डेरिवेटिव. फेनिटोइन किसका डेरिवेटिव है? फेनिटोइन कम्स अंडर एंटी एपिलेप्टिक ड्रग. एपिलेप्सी की ड्रग पढ़ते हो ना आप, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग में हमारा फेनिटोइन आता है. कौन सा डेरिवेटिव होता है? सिंपल एपिलेप्सी की ड्रग के क्लासिफिकेशन से क्वेश्चन है. सक्सिनिमाइड, हाइडेंटोइन, बेंजोडायाजेपिन से बारबिचुरेट्स. फेनिटोइन कम्स अंडर हाइडेंटोइन डेरिवेटिव. फेनिटोइन इज 5,5 डाइफिनाइल हाइडेंटोइन. 5,5 डाइफिनाइल हाइडेंटोइन. Diphenyl hydantoin is phenytoin. Okay, answer is option B. Next question है, Latin term pulvis conspersus refers to, है ना. Latin terms are very important. Okay, Latin terms pulvis conspersus. Okay, options are powder. Powder, for powder Latin term is charata. Charata means powder. Pulvis is also powder. Okay, ointment, for ointment Latin term is unguentum. Unguentum is ointment. Dusting powder, answer is option C. Latin term pulvis conspersus refers to dusting powder. Okay, poultice, for poultice Latin term poultice. Poultice होता है cataplasma. Cataplasma, poultice. Okay, so the answer of our question is option C. Next question is, central register of pharmacist is maintained by, है ना. central register of pharmacist is maintained by PCI, है ना. ऑप्शन देखिए, सेंट्रल काउंसिल, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, हेल्थ मिनिस्ट्री या यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन. सेंट्रल रजिस्टर ऑफ फार्मासिस्ट इज मेंटेन्ड बाय पीसीआई, फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया. PCI is also known as Central Council. Okay, answer is option A. Next question है, first heart sound is due to closure of. First heart sound. Heart sounds are lub dub. Lub dub. Okay. First lub, second dub. The first heart sound is due to closure of. The first heart sound is due to closure of aortic valves, and the second heart sound is due to closure of semilunar valves. Okay, so देखिए ऑप्शंस में है arterial contraction, ventricular filling नहीं होगा, सेमिलुनर वॉल्व या एवी वॉल्व. आंसर इज ऑप्शन डी हो जाएगा, एवी वॉल्व्स. फर्स्ट हार्ट साउंड इज टू क्लोजर ऑफ, ऑप्शन डी एवी वॉल्व हमारा हो जाएगा. ओके, देखिए लिखा हुआ एक्सप्लेनेशन देखिए. During each cardiac cycle, two prominent sounds are produced, which can be easily heard with a stethoscope. The first heart sound lub is associated with the closure of tricuspid and bicuspid valve, है ना. Whereas second heart sound dub. First heart sound lub, second heart sound dub. Okay, is second heart sound is due to closure of semilunar valve, aortic and pulmonary valve. और जो फर्स्ट हार्ट साउंड इज एसोसिएटेड विद द क्लोजर ऑफ ओटिक वॉल्व्स, ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व. ओके, तो फर्स्ट हार्ट साउंड इज टू क्लोजर ऑफ ओटिक एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व, एवी वॉल्व, ट्राइकस्पिड एंड bicuspid valve. Second heart sound is to closure of semilunar valve, aortic valve and pulmonary valve. Okay, AV valve, AV मतलब atrioventricular ना. Okay, next of influenza antiviral drug. Influenza antiviral drug is amlodipine, felodipine, amantadine, nifedipine. Okay, देखिए ऑप्शन, इन्फ्लुएंजा एंटीवायरल ड्रग पूछा आप लोगों से, है ना. तो कौन सा है? एम्लोडिपिन, फेलोडिपिन, निफेडिपिन. These are calcium channel blocker. Dihydropyridine ring containing calcium channel blockers are nifedipine, amlodipine, felodipine. Okay, so answer of this question is option C. Amantadine is antiviral drug. Okay, and this antiviral drug amantadine is also used in the treatment of Parkinson. Okay,
पार्किंसंस के लिए भी इसको यूज करते हो। डोपामिन फैसिलिटेटर होता है ये, डोपामिन फैसिलिटेटर आपका अमेंटाडिन आता है। ओके, क्वेश्चन बनता है कौन सा एंटी मलेरियल ड्रग है जो पार्किंसन डिजीज में भी यूज हो रहा है, अमेंटाडिन होता है। नेक्स्ट है डायरेक्शन टू फार्मासिस्ट फॉर प्रिपेयरिंग द प्रिस्क्रिप्शन इज गिवन इन। ओके, डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन आर्स फर्स्ट सुपरस्क्रिप्शन। सो इन सुपरस्क्रिप्शन RX मीन्स टेक दो या यू टेक दो या यू टेक। Then sub inscription, in inscriptions ingredients, okay, ingredients come. Then subscription is direction to pharmacist signature or direction for the patient. Okay, so our question is direction to pharmacist, so the answer of our question is option B, subscription. Okay, next analeptic is a reference to analeptics are respiratory stimulant जो होते हैं, these are called as analeptics. Examples are doxapram, निकेथेमाइड, these are analeptic, है ना। देखो एनास्थेटिक एजेंट्स नहीं होते, एंटी एपिलेप्टिक नहीं होते, CNS डिप्रेसेंट नहीं होता, these are ऑप्शन डी CNS स्टिमुलेंट होंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है बीटा सेल्स ऑफ पेंक्रियाज सिक्रेट। पेंक्रियाज इज heterocrine gland is pancreas. Okay, heterocrine gland. This is exocrine as well as endocrine, है ना। एक्सोक्राइन फंक्शंस लाइक सिक्रेशन ऑफ एक्सोक्राइन फंक्शंस में जो पेंक्रियाटिक जूस, सिक्रेशन ऑफ पेंक्रियाटिक जूस इज इट्स एक्सोक्राइन फंक्शन। एंड एंडोक्राइन फंक्शंस में जैसे कि आपका इंसुलिन, ग्लूकागोन, हॉर्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं, दीज आर एंडोक्राइन फंक्शन। ओके, beta cells of pancreas secrete glucagon is secreted from the alpha cells of pancreatic islet. Beta cells of pancreas secrete insulin, answer is option D, insulin. Okay, बाकी delta cells secrete somatostatin और p सेल होते हैं पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड सेल्स जिनसे पैंक्रेटिक पॉलीपेप्टाइड सिक्रेट होता है। ओके, नेक्स्ट है क्राइसैंथेमम सिनेरारिफोलियम इज द बॉटनिकल सोर्स ऑफ टोबैको का निकोशियाना टोबैकम होता है, सोलेनेसी फैमिली टोबैको की होती है। स्टावरी, सोर्स ऑफ स्टावरी इज एस्पैरागस रसिमोसस, फैमिली ऑफ द स्टावरी इज लिलिएसी। ओके, पायरिथ्रम, आंसर ऑफ आवर क्वेश्चन इज पायरिथ्रम का सोर्स ऑफ पायरिथ्रम इज क्राइसैंथेमम सिनेरारिफोलियम। पायरिथ्रम इज इंसेक्टिसाइड एंड फैमिली ऑफ पायरिथ्रम इज कंपोजिटी। ओके, बाकी शंख पुष्प भी दिया, तो यहाँ पर आंसर ऑफ अवर क्वेश्चन इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट फार्माकोडायनेमिक रेफर टू फार्माकोडायनेमिक व्हाट ड्रग डज टू द बॉडी, this is pharmacodynamic, and what body does to the drug, this is pharmacokinetic ADME comes under pharmacokinetic. Okay, in pharmacodynamic देर इज मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, ड्रग का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, बायोलॉजिकल एक्शन ड्रग का आता है फार्माकोडायनेमिक में। ऑप्शंस में दिया है हमें ड्रग एक्सक्रीशन, दिस इज काइनेटिक, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन इज आवर आंसर, ड्रग एब्जॉर्प्शन, ड्रग एलिमिनेशन, दिस इज ऑल्सो kinetic. In kinetic ADME comes, and in pharmacodynamic drugs mechanism of action. So answer of our question is option B. Next, loss of sense of smell is called as photophobia, ageusia, aphasia, and so anosmia. Loss of sense of smell is known as anosmia. Next, dash are used for pyrogen testing. Mice, guinea pig, rat, and rabbits. Rabbits are used for pyrogen testing. Okay. Next, drug commonly used in shampoo for treating dandruff. Anti-dandruff, है ना। So the question is about anti-dandruff. Sulfur, hydrogen sulfide, selenium sulfide, yellow mercuric oxide. So answer of our question is option C. Selenium sulfide is used in shampoo for treating dandruff. Okay. Next है sodium bicarbonate on heating give. सोडियम बाइकार्बोनेट हीटिंग, इसको हीट करेंगे तो क्या देगा, सोडियम सल्फेट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस CO2, सोडियम क्लोराइड प्लस CO2, सोडियम कार्बोनेट प्लस CO2. So answer of our question is option D. When sodium bicarbonate is heated, it gives sodium carbonate plus CO2. Okay. देखिए when heated sodium bicarbonate NaCO3, it is also known as baking soda, break down into sodium carbonate Na2CO3, water and carbon dioxide. This is decomposition reaction that occur at temperature about 170
6 डिग्री फ़ारेनहाइट और 80 डिग्री सेल्सियस। द किलर किलियानी टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट, किलर किलियानी टेस्ट इज यूज टू डिटेक्ट, ऑप्शंस आर डिजिटॉक्सीजैनिन, डिजिटॉक्सोज, डिजॉक्सीजैनिन, जिटॉक्सीजैनिन, है ना। डिजिटॉक्सोज कार्डिक जो है किलर किलियानी टेस्ट हमारा जो होता है डिजिटालिस में जो डीऑक्सी शुगर होता है डिजिटॉक्सोज, फॉर द डिटेक्शन ऑफ डिजिटॉक्सोज, है ना, किलर किलियानी टेस्ट इज यूज्ड। सो द आंसर फॉर क्वेश्चन इज ऑप्शन बी। मतलब पायूरिया इज प्रेजेंस ऑफ डैश इन यूरिन, है ना, प्रेजेंस ऑफ डैश इन यूरिन, पायूरिया। इंक्रीज नंबर ऑफ पस सेल, इंक्रीज नंबर ऑफ आरबीसी, इंक्रीज नंबर ऑफ एपिथेलियल सेल्स या प्लेटलेट्स, है ना। तो पायूरिया इज प्रेजेंस ऑफ पस इन द यूरिन, इंक्रीज नंबर ऑफ पस सेल्स, प्रेजेंस ऑफ पस इन द यूरिन इज नोन एज पायूरिया। नेक्स्ट टार्टर एमिटिक इज एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट, दिस इज रोचेले सोल्ट, सोडियम टार्ट्रेट। सो आंसर इज antimony potassium tartrate is tartar emetic, answer is option A. Next है macrolide antibiotic, pilocarpine is not antibiotic, pilocarpine is cholinomimetic alkaloid which is used in glaucoma as a meiotic it is used in glaucoma. erythromycin macrolide antibiotic में आता है, आंसर इज ऑप्शन B. इन मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रोक्सिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, स्पारामाइसिन, ये सब आती है। हायोसिन, फाइसोस्टिग्मिन, दीज बोथ आर ऑल्सो नॉट एंटीबायोटिक, ये एंटीबायोटिक नहीं है। एंटीबायोटिक में हमारा ऑप्शन बी इरिथ्रोमाइसिन आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलीयूरिया, पोलीफेजिया, पोलीडिप्सिया आर द सिम्टम्स ऑफ पोलीफेजिया, पोलीडिप्सिया सिम्टम्स है, बताइए। आर्थराइटिस, ट्यूबरक्लोसिस, अल्सर्स, डायबिटीज, द सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज। डायबिटीज में इंसुलिन कम हो जाएगा, है ना, ग्लूकोज ज़्यादा हो जाएगा, हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, पोलीयूरिया, पोलीफेजिया, पोलीडिप्सिया हो जाएगा, ये सिम्टम्स है हमारे डायबिटीज़ की। नेक्स्ट ग्लाइकोस यूरिया इज सीन, ग्लाइकोस मतलब ग्लूकोज इन द यूरिन, ग्लाइकोस यूरिया मीन्स ग्लूकोज इन द यूरिन, है ना। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस में नहीं होगा, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, यूटीआई। तो डायबिटीज में जब होगा ना ग्लूकोज ज़्यादा होगा, इन डायबिटीज इंसुलिन विल बी लेस, सो ग्लूकोज विल बी मोर। ओके, इंसुलिन जो है कम हो जाएगा और इंसुलिन के कम होने से ग्लूकोज ज़्यादा हो गया, है ना। तो ग्लूकोज ज़्यादा होगा तो क्या होगा, ग्लाइकोस यूरिया, ग्लूकोज इन द यूरिन। ओके, तो आंसर इज ऑप्शन बी, डायबिटीज में होगा ग्लाइकोस यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग देने वाले हैं, ओके, आप लोगों के लिए क्या क्वेश्चन है, एल्डोबायोनिक एसिड इज द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ इसबगोल, एसाफोइटिडा, अगार और अकेशिया। ओके, इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो मुझे आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।